A very good morning to my dear student of class 5. Today we are going to start a new topic, and that is fraction. You have already learned a lot about fraction in previous class. Let's start. Let's recall. What is a fraction? Fraction क्या होता है? A fraction is a part of a whole or part of a group. फ्रैक्शन किसी होल पार्ट का कोई हिस्सा है या किसी ग्रुप का कोई हिस्सा है, एंड इट माइट बी पार्ट ऑफ पेयर, हाफ ऑफ एन एप्पल और अ थ्री ऑफ अ डजन. ठीक है. सो फ्रैक्शन क्या है? सपोज you ordered a pizza. As you know, pizza comes in a pieces, 4 pieces pizza, 6 pieces pizza, 8 pieces pizza. जब आप एक स्लाइस निकाल लेते हो तो वो जो आप स्लाइस उस वो जो पार्ट है दैट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ दैट पिज़्ज़ा. ओके. सपोज यू हैव अ बिस्किट और आपने उसको हाफ ऑफ डिवाइड किया. आपने उसे 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और हाफ बिस्किट आपने खा लिया. सो अ फ्रैक्शन सच इज हाफ 1/2. कैसे डिनोट करते हैं हाफ को? 1/2 से हैज़ 2 नंबर्स. तो इसके 2 नंबर्स हैं. एज यू कैन सी हम इसको कैसे लिखते हैं? 1/2, 1/2. So 1, the top number is called numerator, and 2, the bottom number is the denominator. Okay, so we have example here 1/2. So 1 is numerator here and 2 is denominator here. फ्रैक्शन कैन हैव 3 डिफरेंट टाइप्स. न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के बेस पे हमने फ्रैक्शन को 3 काइंड्स में डिवाइड किया है. द फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. व्हाट आर प्रॉपर फ्रैक्शन? द न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. जिन फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, इट मीन्स टॉप वाला नंबर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा होता है, दैट फ्रैक्शन आर कॉल्ड proper fraction. Okay, we have example here 1/3, 4/7, 3/5, 2/5. As you can see in this example 3/5, 3 is smaller, 5 is larger. तो numerator less है आपका and denominator बड़ा है. So this kind of fraction is called proper fraction. Now the second kind of fraction is improper fraction. The numerator is greater than or equal to denominator. जिसमें numerator denominator से बड़ा होता है या दोनों आपस में equal होते हैं. These kind of fraction are called improper fraction. For example, we have 3/2, 4/3, 7/5 and 6/6. Okay, in these example you can see that numerator are greater and denominator are smaller. We have example 9/5. You can see 9 is greater and 5 is smaller. Okay, so these kind of fraction are called improper fraction. Now we have third kind of fraction, that is mixed fraction. What is mixed fraction? A whole number and proper fraction together. जब एक whole number और fraction मिलके, proper fraction मिलके एक fraction form करते हैं, इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं. वी हैव एग्जाम्पल्स हियर 4 1/3, 6 whole number 4/7, 7 whole number 3/5 and 3 whole number 2/5. These all are the example of mixed fraction. Now we can convert the improper fraction into mixed fraction. जो improper fraction होते हैं जिसमें numerator denominator से बड़ा होता है, उन fraction को हम mixed fraction में convert कर सकते हैं. As we have example here 9/2. So 2 से आप divide करेंगे 9 को. 2 is divisor, 9 is dividend. जब हम divide करते हैं we get 2 4s are 8, 4 as quotient and 9 minus 8 1 as remainder. So we written as, हम कैसे लिखेंगे इसको? 4 टाइम जो क्वेश्चन आपका कंप्लीट गया है, 4 इज होल नंबर एंड रिमाइंडर इज न्यूमिनेटर. रिमाइंडर जो है न्यूमिनेटर बन जाता है एंड डिवाइजर इज डिनोमिनेटर. सो वी राइट इट एज 4 होल नंबर 1/2. सो वी कैन कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन. सिमिलरली हम मिक्स फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं. हम यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 × 4 एंड +1 कर दूँ, 2 4s are 8 एंड 8 + 1, तो ये अगेन क्या बन जाएगा हमारा? 9/2. सो वी कैन डू दिस ऑल्सो. Okay, so we can convert the mix into improper and improper into mixed number. Now we will learn second topic, how we add the fraction and how we subtract the fraction. Subtraction को add and subtract कैसे करते हैं? Next is that. So first what we do, adding and subtracting fraction. हमें फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स. पहले हम सीखेंगे कि ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दीज काइंड ऑफ फ्रैक्शन. लेट्स स्टार्ट. So we have an example here 1/4 + 1/4. Okay, if I ask you add these two fraction, इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करना है, what you will do? आप कैसे इन्हें ऐड करेंगे?
यू कैन ऐड इट लाइक दिस. अगर आप इन्हें ऐसे करते हैं कि 1+1 कर दीजिए एंड 4+4 कर दीजिए, सो व्हाट यू विल गेट 2/8. ऊपर 1+1 इज़ 2 एंड 4+4 इज़ 8. एंड अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, एज यू नो 2 और 8 जो हैं दोनों 2 की टेबल में आते हैं, सो ऑल्सो वी कैन राइट इट एज 2 1 2 एंड 2 4 8. सो हमारे को 1/4 प्लस 1/4 ऐड करके भी क्या मिल रहा है, 1/4. सो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट डन. ऐसे नहीं किया जाता ये. व्हाट वी डू व्हेन वी हैव कॉमन डिनोमिनेटर, जब हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वी हैव अ प्रॉपर मेथड. हमारे पास एक प्रॉपर मेथड है टू ऐड दिस काइंड ऑफ फ्रैक्शन. ओके, सो फर्स्ट वी विल लर्न दैट हाउ टू ऐड द फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर. जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको कैसे ऐड करते हैं. सो दिस इज़ रॉन्ग. What we do actually 1/4 plus 1/4 and that is equal to, as you can see that 4 and 4 डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है, सो वी कीप इट 4 एज इट इज़. तो 4 आपका 4 ही रहता है. देयर वुड बी नो चेंज इन डिनोमिनेटर. लेकिन जो आपके न्यूमिनेटर हैं वो जो भी गिवन होंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे. सो हेयर वी गेट 1+1 इज इक्वल टू 2 एंड 4 ही रहेगा. देयर वुड बी नो चेंज इन डिनोमिनेटर. सो वी गेट 2/4. नाउ 2 1 2 एंड 2 2 4, वी गेट 1/2. सो द आंसर ऑफ 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2. ओके, सो देयर वुड बी नो चेंज इन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में आप कोई चेंज नहीं करते, उसको एज इट इज़ रखते हैं एंड न्यूमिनेटर को ऐड कर लेते हैं. नाउ आई हैव वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू. 13/36 प्लस 7/36. नाउ दोनों में यू कैन सी 36 एंड 36 क्या है आपका कॉमन डिनोमिनेटर. सो व्हाट वी डू, 36 एज इट इज़ रहेगा डिनोमिनेटर में एंड न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे. सो 13 + 7 इज इक्वल टू 20. सो हियर वी हैव द आंसर एंड द आंसर इज 20/36. ओके, so 13/36 plus 7/36 is equal to 20/36. So this is how we add the fraction with common denominator. And इसको आप सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. Now subtracting, how we subtract the fraction. 3/5 minus 1/5. ओके, सो अगेन सब्ट्रैक्शन में भी आप सेम चीज़ करेंगे. हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में आपका सेम वही रहेगा. डिनोमिनेटर यू कीप इट सेम. अगर डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो डिनोमिनेटर में देयर वुड बी नो चेंज इन आंसर एंड आपके न्यूमिनेटर में आप अब माइनस करेंगे. सो हियर वी गेट 3 - 1 इज इक्वल टू 2. सो द आंसर ऑफ 3/5 minus 1/5 is equal to 2/5. Okay, so this is how we subtract the fraction with common denominator, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. वन मोर एग्जाम्पल इज हेयर 15/28 minus 3/28. So as you can see both the denominators are 28, so we keep it 28 as 28 and 15 minus 3 न्यूमिनेटर में माइनस कर देंगे. 15 minus 3 is equal to 12. So 15 minus 3 is equal to 12. So answer is 12/28. Now एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. अभी तक हमने क्या किया था, वी हैव कॉमन डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर्स थे. नाउ व्हाट वी डू, वी आर डूइंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिसमें डिनोमिनेटर्स सेम ना होकर अलग अलग होते हैं. तो उसमें हम क्या करते हैं, हाउ वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दीज काइंड ऑफ फ्रैक्शन. लेट्स चेक इट आउट. सो एज यू कैन सी दैट 4 and 6 आपके अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं. सो व्हाट वी डू इन द केस व्हेन वी हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, जब हमारे पास दो अलग अलग नंबर होते हैं, वी टेक आउट द एलसीएम. व्हाट वी डू, वी टेक आउट द एलसीएम. सो हियर यू कैन सी एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज इक्वल टू 12. एलसीएम जो 4 और 6 का होता है दैट इज़ 12. तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसका कॉमन डिनोमिनेटर बना देंगे. सो वी चेंज इन दिस, 4 को भी हमें 12 बनाना है एंड 6 को भी 12 बनाना है. लेट्स सी कैसे करेंगे इसको. सो इन दिस केस व्हाट वी डू, वी मेक द डिनोमिनेटर सेम. हम डिनोमिनेटर जो डिफरेंट हैं उनको सेम कर देंगे. एज वी नो द एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज इक्वल टू 12. तो हम फर्स्ट फ्रैक्शन के लिए भी डिनोमिनेटर को 12 बनाएंगे एंड सेकंड फ्रैक्शन के लिए भी डिनोमिनेटर को चेंज कर देंगे 12 में. सो एज यू नो 4 को जब अगर आपको चेंज करना है 12 में, सो यू नो 4 3s are 12. सो वी मल्टीप्लाई 4/3. तो सिमिलरली हम न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे. सो वी गेट 1 3s are 3 and 4 3s are 12. So it will become 3/12. Okay, so we have LCM 12. So we make the denominator 12. And for 1/6
6 2 are 12, you know. So we multiply this by 2. So we multiply numerator and denominator both by 2. So we get 6 2 are 12 and 1 2 are 2. Now we have convert. Now we have common denominator 3 by 12 plus 2 by 12. Again हमारे पास सेम हो गया, 12 is common denominator और आपका numerator add हो जाएगा. So what will be the answer? 3 plus 2 is equal to 5 and 12 will be 12. 12 में कोई changes नहीं आएगा. Okay. So 3 plus 2 is equal to 5 and 12 will be 12. So the answer is 5 by 12. So 1 by 4 plus 1 by 6 is equal to 5 by 12. So hope you have understood what we do. We take out the LCM of denominator. हम denominator का LCM निकालते हैं and सबसे पहले हम दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को कॉमन कर लेते हैं. देन वी ऐड बाय द सेम प्रोसीजर. नाउ वी हैव वन मोर एग्जाम्पल हियर. 3 by 10 plus 1 by 6 plus 2 by 5. Again we have different denominators. We have 10, 6 and 5. So we take out the LCM of 10, 6 and 5. हम 10, 6 और 5 का LCM निकालेंगे एंड जो LCM आएगा वो हम फिर सबके डिनोमिनेटर को LCM के इक्वल कर देंगे. सो LCM ऑफ 10, 6 and 5. सो 6, 5 और 10 का जो LCM है दैट इज इक्वल टू 30. ओके, 10 3 जा 30, 6 5 जा 30 एंड 5 6 जा 30. सो अब हम एक एक करके इन सारे डिनोमिनेटर को 30 के इक्वल करेंगे. सो फर्स्ट 3 अपॉन 10, एज यू नो 10 3 जा 30. तो फर्स्ट फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई बाय 3. हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे. सो 3 by 10 मल्टीप्लाई बाय 3 and 3. ठीक है, 3 into 3, 3 3 is 9 and 10 3 is 30. So it will become 9 by 30. For the second fraction 1 by 6. 6 को आपको 30 करना है. So we have 6 5 is 30. So we multiply it by 5 and 5. 1 5 is 5 and 6 5 is 30. Now again 2 by 5, 5 6 is 30, 2 into 6 and 5 into 6. So we get, तो हमारे जो डिनोमिनेटर कॉमन होके हमारे पास फ्रैक्शन आएंगे दैट आर 9 by 30 प्लस 5 by 30 प्लस 12 by 30. नाउ वी हैव कॉमन डिनोमिनेटर 30. 30 हमारा कॉमन डिनोमिनेटर है. सो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, हमारा डिनोमिनेटर 30 रहेगा और हम ऊपर के न्यूमिनेटर को ऐड कर लेंगे. सो वी हैव 9 प्लस 5 प्लस 12. जब हम ऐड करते हैं 9, 5 एंड 12 को, व्हाट वी गेट 9 plus 5 14 and 14 plus 12 26. So the answer is 26 by 30. ठीक है, आप 26 by 30 को कन्वर्ट भी कर सकते हैं स्मॉलर फ्रैक्शन में. एज यू नो 26 and 30 बोथ आर डिविजिबल बाय 2. 2 से डिवाइड होंगे बिकॉज दोनों क्या है हमारे पास इवन नंबर है. सो जब हम डिवाइड करते हैं 26 को 2 से, व्हाट वी गेट 2 1 जा 2 and 2 3 जा 6, 13. एंड जब 30 को डिवाइड करते हैं वी गेट 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. सो आंसर इज 13 अपॉन 15. So 3 by 10 plus 1 by 6 plus 2 by 5 is equal to 13 upon 15. So this is how we add the fraction with different denominators. जब हमारे पास अलग अलग डिनोमिनेटर्स होते हैं इस तरीके से हम ऐड करते हैं. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट. सो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? वी हैव एग्जाम्पल 5 by 6 minus 4 by 9. 6 and 9 दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं. सो फर्स्ट वी टेक आउट द एलसीएम ऑफ 6 and 9. ठीक है, जैसे आप ऐड करते हैं सिमिलरली हम सब्ट्रैक्ट में भी सेम करेंगे. वी टेक आउट द एलसीएम ऑफ 6 and 9 एंड दैट इज इक्वल टू 18. एज यू नो 6 3 is 18 and 9 2 is 18. सो अब हम दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 18 बनाएंगे. 18 बनाने के लिए 5 by 6 को 6 3 is 18, तो दोनों से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से. 5 3 is 15 and 6 3 is 18. नाउ 4 by 9 को जब आप चेंज करेंगे, सो 9 2 is 18, वी मल्टीप्लाई बाई 2. 4 2 is 8 and 9 2 is 18. सो वी गेट, चेंज करने के बाद 15 by 18 माइनस 8 by 18. अब हमारे पास फिर से सेम आ गया, कॉमन डिनोमिनेटर्स हो गए. सो डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा एंड न्यूमिनेटर से आप न्यूमिनेटर सेकंड न्यूमिनेटर को माइनस कर लेंगे. सो 15 माइनस 8 आप माइनस करेंगे एंड 18 आपका 18 रहेगा. सो 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7 and 18 will be 18. So the answer is 7 by 18. So 5 by 6 minus 4 by 9 is equal to 7 upon 18. Okay. Now one more example is here, 1 minus 3 by 5. अगर आपके पास 1 है तो क्या करेंगे? ठीक है, सो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 by 1. 1 कैन बी डिनोटेड एज 1 by 1. अगर यहाँ पे 4 होता तो मैं क्या करती? 4 by 4 लिखती उसको. ठीक है, अगर होल नंबर गिवन होगा तो उसको पहले हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो उसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे. सो 1 इज़ गिवन हियर, तो हम इसे लिखेंगे 1 by 1. ओके, और अगर 4 होता तो हम लिखते हैं 4 by 1.
ठीक है, अगर किसी का डिनोमिनेटर गिवन नहीं होता तो उसके प्लेस पे हम 1 लिखते हैं. सो 1 को वी विल राइट 1/1 एंड 3/5 विल बी -3/5. नाउ अगेन एलसीएम ऑफ 1/5 इज 5. आपका जो एलसीएम आएगा 1 और 5 का दैट इज इक्वल टू 5. तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे और डिनोमिनेटर को 5 बनाएंगे. सो 1 एंड 5 का जो एलसीएम है दैट इज़ 5. नाउ वी विल चेंज द डिनोमिनेटर. ओके, सो 1/1, 1 को 5 बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5. तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे. सो 1/1 इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी विल राइट इट एज 1 इंटू 5 एंड 1 इंटू 5. ओके, नाउ 3/5 इज ऑलरेडी 5. 3/5 के केस में आपके पास डिनोमिनेटर में पहले से ही 5 है, सो देयर वुड बी नो चेंज. सो वी विल राइट 5/5 माइनस 3/5. नाउ 5 इज कॉमन डिनोमिनेटर एंड 5 से 3 माइनस हो जाएगा. सो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एंड 5 एज इट इज़ रहेगा आपका डिनोमिनेटर. सो द आंसर इज 2/5. सो 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2/5. होप यू हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स. आपको ये जो टॉपिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर्स एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर्स समझ में आ गया होगा. सो प्लीज़ डू द सम्स गिवन इन प्रैक्टिस वर्क. ओके, थैंक यू सो मच क्लास.